अभी मैं इसको पॉज कर रही हूँ। So, all right, I have sent reminders to different places and different groups everywhere. So, if people are comfortable with opening their, switching their video on, it would be really appreciated. To kind of make sometimes communication easier for me. So, right now, what do you expect from today's session? You're welcome to share your thoughts and your expectations in the chat box, and also you can share your introduction. And again, a few more people have joined. Now the meeting room is open, so I cannot see the names that the people who are joining. Uh, I just want to ask and make sure: are there any fathers in the meeting? So far, I didn't see anyone, and no form is filled by any of the fathers. Can you people hear me? देयर इज अ मैसेज दैट वॉइस नहीं है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरा क्या आवाज नहीं आ रही या आ रही है? जी। Clear. Okay. So now, the ones who will be facing issues with the, audit, sorry, their audios, it means कि उनके यहाँ डिवाइस का इशू है। मेरी तरफ से क्लियर हो गया। If only single person can report that आपकी आवाज क्लियर है, it means my side is clear. And yes, still I haven't received so far any message that yes, I'm a father, or yes, I am from the male side of the society. What if they are not father but they want to learn? So this the platform was open for everyone. Um, so you can see the screen in front of you, the hidden psychology behind parenting, from control battles to conscious responses. So control battles. Did anyone listen to my video, or anyone who have read the piece of writing जो मैं share करती आई हूँ, and I mentioned control की जंग to conscious response. And today I'll also share a model in front of you while we react. So अभी जो मैंने फॉर्म बनाया था उसमें जो क्वेश्चन था, there was only one question जो regarding to parental problems था, and almost 80% क्वेश्चंस का जो आंसर था वो सबका सेम आया कि दे आर फेसिंग बिहेवियरल इश्यूज of the children. They want to learn about disobedience and all. And some of the questions are also striking for me because every parent or many parents are concerned why their children are not obedient, why they do not listen. And some parents only want a secret जो मैं शेयर कर दूं जिसके बाद उनके बच्चे सुनना शुरू कर दें। सो अपनी स्टोरी से स्टार्ट करूँ।
how I became from a very anxious and torn and tired mom, how I turned into a parenting coach. कि खुद मेरा जो सिचुएशन थी, मेरे जो पैटर्न थे, वो शदीद टॉक्सिक रवैये और एंजाइटी ड्रिवन पेरेंटिंग आई वाज एट द सेम टाइम समटाइम्स enjoying, but most of the time wasn't an enjoyable time with my kids. And overall पूरी लाइफ को इसने डिस्टर्ब किया हुआ था, बिकॉज आई डोंट नो, आफ्टर बिकमिंग अ मदर आई हैड हाई ड्रीम्स कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे ही माँ बनूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, सब फ्लैट हो गए थे विद द टाइम. Well, I didn't give this option to anyone to unmute themselves. So how did I listen? थोड़ा सा शो. चलिए जी, आई थिंक गुलाम हसन साहब इज अ फादर नाउ. चलिए, इट्स ओके इफ एनी फादर इज ज्वाइनिंग और अब आप सुन रहे हैं तो कम से कम एक मैसेज कर दें कि हाँ जी, आई एम अ फादर हियर. गुड. सो क्या हुआ कि मैंने अपने आप को चेंज किया, और उसके बाद ना सिर्फ ये कि मैं चेंज हुई, मैंने उसको एज अ पर्सन, एज अ मदर अडॉप्ट किया, बल्कि मुझे उसका इन पैटर्न्स को सीखने का इतना ज्यादा फायदा हुआ कि मैंने अपने नॉलेज को बढ़ाना शुरू किया. I started gaining information. I started, getting into this very field of parenting कि हो क्या रहा है. और फिर मेरे आसपास जो माएँ अभी भी उन्हीं परेशानियों का शिकार थी, I started helping them कि ये मेरी बात उनको मदद कर सकती है. और फिर एक वक्त आया कि मुझे ये समझ आई कि आई एम अ पेरेंटिंग कोच यूजिंग NLP टूल्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. आप में से जितने लोग भी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से वाकिफ हैं, इट्स गुड. फॉर अदर्स आई विल टेल दैट इट इज अ फील्ड दैट deals with kind of mind sciences, neurological programming and linguistic programming of your mind. We deal with the mind patterns. We read them, we make our client unlearn the old patterns, and then we install new patterns. Thank you so much for informing me, Faisal Khan. Okay. So this is how when I changed my patterns, I came to know that there was a deep, uh, need of nervous system healing. जो दुनिया में हो रहा था वो कुछ नहीं था, सब कुछ वो था जो मेरे माइंड में हो रहा था. So I changed what was happening in my mind. So I started enjoying the journey. And now I am spreading this understanding and awareness in the society. Mainly my audience is mothers. In one-on-one sessions, I prefer not to deal directly with fathers, because when I'm talking about young children, 0 to 7, so mothers are more, responsible and are having more impact on the child and the neurology. So that is why मैं directly मदर से डील करती हूँ. So अब आगे चलते हैं इस पे. कंट्रोल बैटल्स टू कॉन्शियस रिस्पॉन्स. सो होता क्या है व्हेन यू से, आप लोगों के फॉर्म्स में जो लिखा होता है बिहेवियरल इश्यूज एंड योर चाइल्ड डजंट लिसन, आप में से कितने लोग हैं जो वाकई अभी बताएं? रेज योर हैंड इफ यू कैन. आपको पता है वो रिएक्ट वाला हार्ट बना हुआ है, उसको दबाएं और वहां पे येलो थम्स अप करें. हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली स्ट्रगलिंग विद दिस पॉइंट दैट आवर चिल्ड्रन डोंट लिसन, एंड आपने इसीलिए ये वाला सेशन ज्वाइन किया है कि साइकोलॉजी, कोई हिडन साइकोलॉजी आज मिलेगी और आज के बाद मेरे बच्चे मान जाएंगे. रेजिंग हैंड विल बी कंसिडर्ड एज अ क्वेश्चन, एंड आई विल बी केटरिंग क्वेश्चंस, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन शो योर येलो थम्स अप. वहीं पर थम्स अप भी है. और जो भी हैंड रेस कर रहे हैं वो बाद में उसको लोअर भी करना पड़ता है. सो प्लीज शो योर थम्स अप इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम विद दैट. लेट मी शो यू दिस वन. ओके, थम्स अप आ गया है मैसेज में. इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप रिएक्शन में बताएंगे तो मेरे लिए सहूलत हो जाएगी. सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन अगेन सो दैट वी शुड प्रोसीड. आप सबको मैं बता दूं पहले ही कि आप लोगों को क्या मिलने वाला है, आपकी तवक्को पूरी होती है कि नहीं होती. सो व्हाट कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? You can see the title of today's topic. Can you, everyone? Whenever I ask a question, only a yellow thumbs up can do for me. तो एक भी आ जाएगा तो I'll go. So, here my introduction. I am Tayyiba Qureshi. I'm a mind management parenting coach
and I have international certifications of NLP Master Practitioner, Timeline Therapy, and Hypnotherapy. Along with that, I am an MPhil in English Applied Linguistics, having 15 plus years of teaching and dealing with the students and parents from that window as well. सो यहाँ से चलते हैं आगे। जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों से बातें मनवाने के लिए, हो सकता है कि ज्यादा मसले बच्चों के साथ निकले ही ना, बाद में मसले निकले आपके साथ, आपकी न्यूरोलॉजी के साथ। सो एंड टुवर्ड्स एंड ऑफ द सेशन यू एंड अप नोइंग more about the problems that you carry in your head and in form of unresolved emotions instead of आपके बच्चे का behavior. So here you go. What can you see? It's a loop. Autopilot reaction का loop. क्या होता है सबसे पहले? हाँ, स्क्रीन कैसे? So autopilot reaction. Number one, trigger. How many times you get triggered with your children's actions, behaviors, reactions? So many problems. छोटे छोटे बच्चों के tantrums, थोड़े से बड़े बच्चे का behavior, उससे भी थोड़े से बड़े बच्चे की जबान, and many other things. So something happens that pushes our buttons. Example, child doesn't listen. So right after trigger, what comes? Emotion. And sometimes you can even replace trigger with emotion, because trigger is actually an emotion. Emotion आया, we feel a strong emotion instantly. Example, anger, frustration, irritation, overwhelm. Directly instant reaction. Without thinking or choosing, we don't choose mostly our reactions. That is why we regret, guilt, and repeat. अच्छा जी, so we shout, lecture, being sarcastic, threaten, or punish. Number four step is we carry guilt and then regret. After the reaction, guilt kicks in. I shouldn't have shouted. I feel so bad, and then repeat. Nothing changes. So the same cycle happens again because you did not attend something very important in this part. Right after the trigger, the emotion, it was something very important. It was trying to tell you something about you, not about your child. So you missed that information. So the cycle repeats. So this is the loop. Mostly parents are, circulating inside or around this loop. होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है. So my screen is visible to everyone. Okay, okay. Well, everyone, if you have questions, so if during the session questions को ज़हन में आते हैं तो आप साथ साथ अपने पेपर पे लिखते जाइए, so that जब आखिरी 10 मिनट्स मिलेंगे तो आपको टाइप करने में और सोचने में ज़्यादा टाइम ना लगे, तो आप मुझे वो भेज दें। ये भी कर सकते हैं कि आप टाइप करके किसी जगह रख लें, और अभी भी भेज सकते हैं, बट आई एम रियली नॉट अटेंडिंग टू द चैट बॉक्स राइट नाउ। ओके, सो मूविंग नेक्स्ट फर्दर, और इज द हिडन ट्रूथ? इट्स नॉट दैट बड़ा सा ट्रूथ कि मैं अभी अभी पहाड़ खोदेंगे और नीचे से चूहा निकल आएगा। पेरेंटिंग इज नॉट ओनली अबाउट बिहेवियर, इट्स नॉट बिहेवियरल। आप कोई सारा दिन एक बिहेवियर नहीं करे जिसको पेरेंटिंग कहेंगे। सुबह उठ के आपने बाजमात नमाज पढ़ाई बच्चों को, उसके बाद आप लेके बैठ गए, उनको नाश्ता खिलाया, और उसके बाद उनको कामों पे भेजा, और उसके बाद वो वापस आए तो उनके कपड़े धोए, उनके बर्तन धोए। इट्स नॉट जस्ट बिहेवियर, इट्स न्यूरोलॉजिकल एंड इमोशनल। This is the thing that involves, 99% the emotion of life, if it comes to mother especially. So हमारे इमोशंस का जो है ना 99% पार्ट हमारी पेरेंटिंग के साथ जुड़ा होता है। Anything good happens there, we are happy. Anything bad happens there, we are not. And then some of the conscious fathers are also the same. अगर बच्चों के साथ माहौल खराब हो जाए तो उनका भी मूड खराब है। So that is connected to emotion and neurological। आपके दिमाग में बहुत कुछ है, आपके पैटर्न्स हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट न्यूरोलॉजिकल। जो पैटर्न्स आपके न्यूरोलॉजिकली इंस्टॉल हो चुके हैं, डिजाइन हो चुके हैं, आप उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको पता भी नहीं। सो चिल्ड्रन, व्हाट डू दे डू? व्हाट देयर बिहेवियर एक्टिवेट्स अनरिजॉल्व्ड इमोशन। आपका कोई भी बटन दबता है किसी भी जगह पर आपका, तो आपका अनरिजॉल्व्ड इमोशन है, उसको देखना है, उसको ढूंढना है, उसको सर्च करना है। सो दैट इज व्हाई बिहेवियर इज कम्युनिकेशन। देयर इज अ हिडन मैसेज देयर।
नाउ कमिंग टू द कंट्रोल मॉडल, इसमें क्या हो रहा होता है? साइकिल ऑफ कंट्रोल दैट क्रिएट्स मोर रेजिस्टेंस। समटाइम्स यू से कि हम बच्चे को जितना मना करें, वो ये दिस इज द रिपीटेड सेंटेंस जो मुझे इनबॉक्स में इंक्वायरीज आती हैं कि मैं जो भी कर लूं, जितना भी कर लूं, यहाँ तक कि ये मुझे मजबूर कर देता है कि फिर मैं दो लगाऊं या फिर मैं इतना चीखूं, फिर काम हो जाता है, आराम से काम हो जाता है। बिकॉज गोल इज मेरी जॉब डन होना चाहिए, मुझे जीतना चाहिए। जब मैंने कहा कि अगर किसी भी मसले का हल ये है कि उस पर मारा जाए और तकलीफ दी जाए या चीखा जाए और डिसरिस्पेक्टफुल हुआ जाए, इसका मतलब है मसला वो था ही नहीं, वो मकसद ही गलत है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया कि अगर आप नमाज पढ़ने को भी मकसद कह रहे हैं, तो भी वो मकसद गलत है, बिकॉज नमाज पढ़वाना उस वक्त मकसद ही नहीं था। उस वक्त कंट्रोल बैटल को विन करना मकसद बन गया था। नाउ नंबर वन, चाइल्ड रेजिस्ट, नहीं सुनता, ठीक है, says no, pushes back or doesn't cooperate. Parent gets triggered, feels frustrated, anxious, disrespected or lose patience. मुझे मेरे साथ कुछ हो गया, किसी ने मेरा कुछ छीन लिया है, मेरी अथॉरिटी जाने लगी है, मेरी बात नहीं मानेगा तो क्या होगा, मैं हार जाऊंगा, दिमाग कह रहे हैं। पेरेंट्स कंट्रोल्स हार्डर, तुम्हें मैंने कहा है ऐसी की तैसी, तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू डू इट, इट्स जस्ट बिकॉज आई हैव सेड सो। uses commands, threats, lectures, punishments, or pressure. And then what happens if a child is really too young, or if even if the child is not too young, this is how unconscious responds to fear, to insecurity, to threatening situations. What does an unconscious mind do of even of an elder? Child resists, unconscious mind resists. जब थ्रेटनिंग आती है हम ज्यादा रेजिस्ट करते हैं क्योंकि हम इनसिक्योर फील करते हैं, चाइल्ड फील्स इनसिक्योर। मोर प्रेशर, कनेक्शन लूज हो रहा है माँ बाप का, वो मुझे समझ नहीं पा रहे, मैं उनकी बात कैसे मानूं, ये मेरा कंट्रोल था, ये मेरी मर्जी थी, मैंने भी तो कहीं ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करनी है कि मैंने इनके आगे सर झुकाना है, ये दिमाग अंदर से कह रहे हैं। सही है। सो चाइल्ड पुशेस बैक इवन मोर, समटाइम द चाइल्ड बिकम्स इवन हार्डर एट दिस पॉइंट, जबकि आपने थ्रेटनिंग शुरू की, एंड देन पेरेंट रिएक्ट्स इवन हार्डर, yelling, shaming, criticizing, or warning increases. Disrespectful behaviors. Here is where you are going to get or carry the guilt in the future moments. Because यहाँ कुछ ऐसा होने लगा है जो बहुत खतरनाक है, जिसपे बाद में बहरहाल गिल्ट होगा, लेकिन होगा क्या? कंट्रोल चाहिए, मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए, जो मैंने कहा है वो होगा, क्योंकि ये मैं हूं, पता नहीं कौन हूं मैं। सो इमोशनल डिस्कनेक्शन, चाइल्ड शट्स डाउन और रिबेल्स, ट्रस्ट ब्रेक्स, डिस्टेंस ग्रोज। इन अपकमिंग slides I'll tell you what happens when emotional disconnection happens between parents and children, and usually at such points it happens when a child isn't listening and we are exercising our power to maintain control, because if there is a control battle between the child and the elderly person, and the elderly person has so many rights and so many authorities to exercise कि मैं तो जी फादर हूँ, मैं तो जी माँ हूँ, तुम मुझे ना कह कैसे सकते हो। इस पूरे कंट्रोल के मॉडल का एंड क्या हो रहा है? रिजल्ट, पावर स्ट्रगल्स चल रही हैं आपस में, इमोशनल डिस्कनेक्शन है, मोर स्ट्रेस फॉर बोथ। सो एनवायरमेंट, व्हाट इज द एनवायरमेंट क्रिएटिंग स्ट्रेस फॉर बोथ, नो लॉन्ग टर्म चेंज। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, why this control model is not appreciable, just because it doesn't bring long term change, ठीक है, it doesn't bring long term change, it just makes you feel कि ठीक है मेरा काम तो हो गया, सख्ती की, जबरदस्ती की। एक्सक्यूज मी। तो आप उस वक्त कंट्रोल की जंग जीत जाएंगे तो आप अपना कोई एक काम तो मनवा ही लेंगे, जो अभी आपने कहा है। सो इस इट्स एक्चुअली नॉट अबाउट ट्रेनिंग, गाइडिंग और पेरेंटिंग, इट्स डिस्कनेक्टेड। वो जो इमोशनल पार्ट है पेरेंटिंग का, जो मैंने आपसे कहा न्यूरोलॉजिकल है, इमोशनल है, जब वो दोनों कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो पेरेंटिंग कैसे होगी? फिर तो ये मुकाबलाबाजी हो जाएगी। सो अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं इस पूरे पैटर्न को, तो थोड़ी सी बातें अपने आपको याद दिला सकते हैं कि पॉज इंस्टेड ऑफ रिएक्शन, रेगुलेट योर इमोशंस, connect before correction, and guide instead of control. So today, what you will take from here, the word guide instead of control.
Are you really guiding them or you're controlling them? This is the question. अभी आप कोई किसी अपनी किसी रैयत को या अपने किसी सब सबमिसिव पार्ट्स को कुछ जबरदस्ती अपनी अतात और अपनी फर्मा बरदारी करवा के क्या कर रहे हैं, कुछ जंग जीत रहे हैं, you're guiding them towards being a good human in the future and having positive impact in the society. You want these things. You want to make them good Muslims as well. बिकॉज उस क्वेश्चन में एक दो ऐसे भी बहुत उदासी वाले क्वेश्चंस थे कि मैं तो अपने बच्चों को अच्छा मुसलमान बनाना चाहती हूँ, बट वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं. ओके, नेक्स्ट. सो coming to quickly coming from reaction to reaction and response model, what happens when reaction happens and what happens when response happens? So reaction is usually, ये दो तीन इसकी निशानियां हैं. Reaction is of course impulsive, comes within a second. Emotional autopilot, वी आर रनिंग autopilot, ऑटो पे लगे हुए हैं हम बचपन से, हमें नहीं पता चलता. इफ अ चाइल्ड थ्रोज टेंट्रम, सो मेरा दिमाग वहां से बोल देता है, मुझे बाद में पता चलता है मैंने क्या किया. इफ अ चाइल्ड हैज स्पिल्ड मिल्क, तो मेरा दिमाग कहीं और से बोलेगा. इफ अ चाइल्ड कम्स एंड हिट इनटू माय हेड और माय वट एवर, मेरे सर पे आके बच गया, पता नहीं कहाँ से मैंने जवाब दे दिया. तो इमोशनल ऑटोपायलट. बच्चे को बिहेवियर चेंज करने के लिए इसका पूरा जो सिस्टम है वो कंट्रोल फोकस्ड ही होता है. मुझे इन बच्चों को कंट्रोल करना है. A mother came to my office and she was talking about her many problems, and she said कि ये जो मेरी बेटी है, she was in grade 10, and she said कि मुझे इसको कंट्रोल करना है, मैं इसकी सोचों को भी कंट्रोल करना चाहती हूँ. देखिए, हम जब इस एज में थे तो सोचा ने हमें बड़ा खराब किया, मैं इसकी सोचें कंट्रोल करना चाहती. एंड आई रियली स्माइल्ड because the lady had so impractical and impossible dreams कि सोचें कंट्रोल हो जाए. हाउ कैन यू? आई आई वांटेड टू आस्क, बेबी आप सोचें अपनी भी नहीं कंट्रोल कर सकती, तो आप इसकी कैसे करेंगी? बट सी, कंट्रोल फोकस्ड, वी आर ऑल द टाइम ट्राइंग टू कंट्रोल फिनोमेना, वी नॉट ट्राइंग टू गाइड और कनेक्ट. सो रिस्पॉन्स इज ऑफ कोर्स इंटेंशनल, इसके लफ्ज से ही पता चल जाता है ये आपने इंटेंशनल इरादे के साथ लिया, इमोशनली अवेयर होके किया, एंड दिस इज कनेक्शन फोकस्ड. Now, what happens when we react or when we respond? There is, you can see in reaction side, there are three portions and almost same ladder, but a few boxes more than this one. Automatic, unconscious, instant. Usually emotions are the domain of unconscious mind. We know, but what we don't know is which emotion, which trigger is hitting what emotion. So if we are not much aware of the emotions, so हमें नहीं पता चलता किस वक्त क्या आ गया है. डीप डाउन कोई फियर होता है, प्रोजेक्ट वो एंगर की शक्ल में हो जाता है. सो इतना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमें समझ आ जाएगी तो अनकॉन्शियस से आने वाले काम को हम कॉन्शियस एफर्ट के थ्रू अच्छा कर लेंगे. सो रिएक्शन, ऑटोमेटिक, अनकॉन्शियस, इंस्टेंट. ट्रिगर आया, समथिंग हैपेंस, पहले भी मैंने से बात की. Child's behavior, words, or actions. Emotion, strong. Feelings arise instantly. Anger, frustration, fear, overwhelm. यहाँ तक की स्टोरी बिल्कुल नॉर्मल है. ये यहाँ भी ऐसी है, ये देखेंगे यहाँ भी ऐसी है. इमोशन, ट्रिगर के बाद इमोशन है, ट्रिगर के बाद इमोशन है. यहाँ पे आ गया ऑटो पायलट रिएक्शन एक सेकेंड में. यू रिएक्ट विदाउट थिंकिंग, यू शाउट, ब्लेम, लेक्चर, थ्रेटन और पनिश. आउटकम, डिस्कनेक्शन, more resistance, power struggles, and regret. And here is a small sentence that can be again a takeaway for you. You can't always control what happens. Outside your locus of control, you cannot do anything, but you can always choose your response. You can always choose how you think about this thing, how you react when this happens. And when we talk about response, so there is a difference there, only very little difference. Response, cautious, intentional, empowering. ये अब अनकॉन्शियस नहीं रहा. जब तक आप अपने अनकॉन्शियस के इमोशन को चैनलाइज करने में कामयाब हुए हैं तो ही आपने रिस्पॉन्ड किया है. इंटेंशनल, यू आर चूजिंग. empowering, it isn't weakening you, it's becoming your power. So what happens in a response model? Trigger comes,
इमोशन कम्स, ये दो हमेशा साथ ही आएंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा, ट्रिगर को काट के इमोशन ही लिख दे भले, ये ट्रिगर के साथ ही इमोशन लिख, बट इट दिस इज लाइक डिस्कनेक्टेड, ट्रिगर एंड इमोशन। But what is not disconnected, you can make a disconnection between them, is emotion and action. दरमियान में कहीं एक चीज आती है, आफ्टर द इमोशन यू विल पॉज। आज इसकी छोटी सी एक्सरसाइज भी हम करेंगे। जस्ट टेक अ मोमेंट, क्रिएट स्पेस, टेक अ डीप ब्रेथ, मेक योर सेल्फ अवेयर विच इमोशन इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग। ऑब्जर्व करें अपनी बॉडी को, सिचुएशंस को, लोग, बच्चे को, अपने आप को। सो यू आर हियर टू गाइड, यू नॉट हियर टू कंट्रोल। आप चीजों को होल्ड ऑन करने के लिए, कोई जंग जीतने के लिए नहीं आए हैं। अगर आज एक बच्चे से गलती हो भी गई है तो वो आहिस्ता कल को सीख लेगा, आज शाम को एक नया लेसन सीख लेगा। वी जस्ट स्टार्ट developing many insecurities in our head in those moments कि ये जो आज ये कर रहा है, ये तो कल को पता नहीं क्या करेगा, इसको तो आज ही सबक सिखा दो वरना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। खुद जिंदगी भर के सबक उल्टे सीखे हो। I know a woman who came and told me that your education and grades के बारे में बहुत कॉन्शियस पेरेंट्स थे, and they said हम दोनों की ग्रेड्स कभी अच्छे नहीं आए थे, इसीलिए तो हम चाहते हैं इसके ग्रेड्स अच्छे आए। सो दैट इज वाई ये स्ट्रगल नहीं करे, और उस अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए इसके साथ जो बिहेवियर रखा जा रहा है, अनएक्सेप्टेबल। आप खुद के साथ भी नहीं रखेंगी। आप तो खुद मुझे बता रही हैं कि हाँ जी, हम भी मीडियोकर से ग्रेड वाली, मैं भी थी, मेरे हस्बैंड भी थे, हालांकि वो अच्छी जॉब भी है, जिंदगी सेटल्ड है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो वो भी कर ही लेगा। सो व्हाई आर यू इम्पोजिंग दोज शेमिंग वर्ड्स ऑन टू हिम? आप खुद भी तो ऐसे ही थे, सो एक्सेप्ट तो कर ले। सो दिस इज हाउ एंड वेयर आप अवेयरनेस क्रिएट करें। इमोशन कौन सा आया है, मेरी बॉडी को क्या हुआ है, मेरी जॉब क्या है, इस बच्चे का कितनी कैपेसिटी है, एंड देन यू रिस्पॉन्ड। ओके, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स कैन डू वंडर्स। Trust me, I am telling you my experience, okay, and my clients' experiences too. You choose how to respond, you connect, guide, and teach, okay, and outcome is connection, cooperation, trust, and long-term change. Because when you connect emotionally, then you come to their level, you create guidance, you give them values, you give them pattern, you give them tools. आप बहुत कुछ करें इन दोज मोमेंट्स। अगर आप अपने होल्ड ऑन टू योर इमोशंस करके अवेयरनेस क्रिएट करें, आप बहुत बड़ी ह्यूमन सर्विस करें। और जब भी कोई ऐसा इवेंट आज के बाद होगा, कोई एक भी होगा, तो रिस्पॉन्स तक पहुंचने तक, किसी मार्के को सर करने के बाद, आपने खुद को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना है, खुद का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी। इफ इट वाज दैट इजी जितना मैं बता रही हूँ, तो सारी दुनिया के पेरेंटिंग मिसाइल खत्म ना हो गए होते। इन दोज मोमेंट्स अपने जज्बात को संभालना और अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्स बनाना एक टफ जॉब है, बट हम टफ जॉब्स करने के लिए रेडी हैं। आर वी रियली रेडी? आर वी? ये लो थम्स अप दिखाइए जरा मुझे। अगर आपकी वीडियोस ओपन होती तो मुझे ऐसे करके नजर आ जाते। गुड, 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 गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वी आर रेडी टू डू डिफिकल्ट थिंग्स, वी हैव बीन डूइंग। हमने इससे मुश्किल मुश्किल काम आज से पहले किए। सो नर्वस सिस्टम मॉडल, चिल्ड्रन बोरो रेगुलेशन फ्रॉम एडल्ट्स। अब होता क्या है, आप डिसरेगुलेटेड हैं, इसीलिए तो आप रिएक्ट कर रहे हैं। आप डिसरेगुलेटेड हैं तो व्हाट विल अ चाइल्ड डू? दे, इट्स अ स्मॉल ब्रेन, इट्स अ बिग ब्रेन। इट डजंट हैव, biologically, neurologically, doesn't have the capacity to regulate itself, emotions को channelize करने की, but this big brain at least it does have. But at the moment of emotional overwhelm, it can't, it simply can't. Again, neurological and biological developmental issue, not personal issue, okay? It just can't at the moment of emotional overwhelm. दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो गया जो इमोशन क्रिएट करता है, वो वाला हिस्सा नम हो गया है जो लॉजिक बनाता है, बट इट विल जस्ट हैपन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, एंड देन यू कैन, दिस बिग ब्रेन कैन व्हाट दिस कैन नॉट। बट एट द मोमेंट ऑफ केओस, इसके छोटे ब्रेन में जो हर वक्त केओस ही रहता है, बिकॉज इमोशन चैनलाइज नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अनरेस्ट का शिकार होता है। अब एट द टाइम ऑफ केओस एक बड़े ब्रेन का केओस भी आ जाएगा और वो मिल जाएगा, तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन, धमाके। So you don't need to add chaos into chaos because when you regulate yourself, this borrows your regulation.
This doesn't cannot create its own, but this borrows your regulation. A dysregulated adult cannot effectively regulate a dysregulated child. So what to do? थोड़ी सी प्रैक्टिस है 10 मिनट्स की। करना क्या है इन दोज मोमेंट्स जब आपका अचानक कंट्रोल की जंग शुरू हो गई है, तो क्या करना है? और जब आपको मैं बताऊंगी कि अगर आप कंट्रोल की जंग में फॉर अ मोमेंट सरेंडर कर रहे हैं, तो भी आप विथड्रॉ नहीं कर रहे, आप हार नहीं रहे, बल्कि आप जीत रहे हैं। दरअसल आपने इमोशंस की जंग जीत ली है। अगर वो बच्चा उस वक्त आपकी वो वाली बात नहीं मानता और आप उसकी चॉइस पे छोड़ देते हैं, and let him or her face the consequences of what she or he is not listening, so that somehow you the battle that you have won. Okay, now first of all you need to do body awareness. If you are triggered, so it's not an easy job, it is an easy job, but it needs practice and repetition. Body awareness, first of all when you are triggered, so आपको ये कुछ चीजें देखनी है। आपकी ट्रिगर हुए हैं, क्या चीज है? Are you feeling, pressure on your chest? Are you feeling your heartbeat is getting faster? Your tone is like getting louder, or your body is getting heat? कभी कभी तो मुझे गुस्से में हीट भी नहीं होती, मुझे ठंडक महसूस हो। लाइक आई कांट फील माय फिंगर्स on my hand. This is how I have realized. And today the episode happens, and every day आपको मैं बता दूं, I don't know about others, I know about myself. If you come and want to learn things about my parenting, I will tell you every day अबाउट माई स्ट्रगल्स। जो दिन मेरे हर रोज जो स्ट्रगल्स में गुजरे होंगे, जो अभी तक मेरी सक्सेस नहीं हुई, या जो दिन मेरे जहां पर ऐसे हैपनिंग में गुजर गए होंगे। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये सब कुछ इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। लाइफ इज नॉट अ लेसन टू कंप्लीट, लाइफ इज एन ऑन गोइंग लेसन जो आपको सीखना पड़ता रहेगा। सो मेरे साथ भी ये होता है, आज ही ये हुआ कि मैं ट्रिगर बहुत ज्यादा हो गई थी, बट ऑफ कोर्स मैंने इसको रिएक्शन में नहीं बदलने दिया, और वो स्टोरी खत्म करवा दी मैंने जल्दी से कि चलिए आई विल सी लेटर। बट काफी देर तक आई विल सिटिंग ऑन सेम टेबल सेम चेयर डूइंग माई थिंग्स प्रिपेयरिंग दिस वर्कशॉप, एंड देन आई फेल्ट कि मेरी बॉडी को कुछ हो गया, मेरा फोकस ही खत्म हो गया, मुझसे काम नहीं हो। एंड देन आई जस्ट शट डाउन द लैपटॉप एंड आई वेंट अपस्टेयर्स। जस्ट बिकॉज ये सब कुछ करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको अपनी बॉडी में होने वाली चेंजेस फील हो जाएंगी। ठीक है? एंड देन व्हेन यू जस्ट क्रिएट अवेयरनेस, इट क्रिएट्स चॉइस। आप अवेयर हो जाएं अपनी बॉडी के लिए। और एक और जुमला भी अपने आप से कहना होता है, आई यूज दिस सेंटेंस ऑन other situations as well. When a child throws tantrums or a child gives behaves in a way that is triggering for you, so you just don't take the name of the persons, humans, कि ये बच्चा है मुझे तंग कर रहा है। नो, आप कहें मेरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। कीप दिस सेंटेंस विद यू, इफ यू राइटिंग समवेयर ये लिख लें। ये जुमले आपको बाद में याद रहने चाहिए, आप उस टाइम अपने आप को ये कहें। इट्स जस्ट टू नर्वस सिस्टम्स वन विद अनदर। मेरे में कुछ मैसेज आया है जो मुझे क्लियरली पता चला अभी, शायद मुझे ये लगा कि बच्चे का चीखना इस बदतमीजी, बदतमीजी तो माँ से कर ली तो बदतमीजी तो हो गई, गुनाहगार हो गया बच्चा, कल को भी बदतमीजी करेगा, क्योंकि आज जो कर रहा है तो कल भी करेगा और सारी जिंदगी करेगा। इस तरह की सोचें आ रही है। सो दैट मीन्स इट शुड बी स्टॉप्ड, एंड इट शुड बी स्टॉप द हार्ड वे, ताकि इसको पता चले और आइंदा ना ये चीखे। You're getting personal. Please don't. Just tell yourself that my nervous system is activated. So you will be having more choices to your reactions, other than जो अभी आप कर देते हैं at that moment. You can see that it is just, this is just a young brain cannot regulate his or her emotions, or its वाला neutral वाला pronoun use करें, its emotions. So something might have happened that is really big. आपको जब ये बात बता दी है, वो बच्चा है ना, उसके लिए तो टॉय टूटना इज बिग थिंग। उसकी पूरी दुनिया टॉय थी, या कभी कभी उसकी पूरी दुनिया एक वही वाली प्लेट थी जिसमें वो हमेशा खाते, और अब आपने उसकी बहन या भाई को डाल दिया, तो उसका पूरा फोकस उसके छोटे से नर्वस सिस्टम का उसके साथ किसी वजह से वाबस्ता होगा। बट यू आर शाउटिंग फॉर नो रीजन कि भाई एक प्लेट ही तो थी वगैरह वगैरह। तुम समझते क्यों नहीं हो? भाई नहीं समझता ना, क्योंकि समझने वाला ब्रेन नहीं डेवलप हुआ अगर बच्चा बहुत छोटा है। अगर बड़ा अभी हो गया है तो इमोशंस के टाइम पर अभी नहीं कर सकता रेगुलेट, 25 ईयर्स तक समझने वाला ब्रेन डेवलप होता है। आपका तो कम से कम हो गया हुआ है, तो आप समझदारी करें। ठीक है? सो क्रिएट अवेयरनेस, एंड देन देर इज अ टेक्निक, स्टॉप टेक्निक, ये आपकी काम आएगी।
स्टॉप मीन्स STOP, ये बहुत से बने हुए हैं इंटरनेट पे, आपको वैसे भी मिल जाएंगे। सो स्टॉप, S मीन्स कोर्स स्टॉप, रुक जाए, जो भी करें फिजिकल स्टॉप। उठना चलना नहीं है, यू वॉन्ट मूव। वो बच्चों वाली गेम होती थी, स्टॉप स्टैचू वाली, वो वाली खेल रहे, दैट मोमेंट स्टॉप। देन टेक अ ब्रेथ, ये भी आपने मेरे साथ करना है। इफ यू आर विद मी, जस्ट शो मी योर थम्स अप सो वी कैन कंटिन्यू विद दिस एक्टिविटी। जस्ट ब्रिंग एनी इवेंट इनटू योर अवेयरनेस जिसने आपके बच्चे का कोई टेंट्रम या बिहेवियर या किसी भी चीज ने आपको ट्रिगर किया था, यू वांट टू डू समथिंग। आई इमेजिन कि आप सब मेरे साथ हैं। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट सी यू, बट मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आप हैं। सो यू नो जस्ट स्टॉप, ये बॉडी को रोक लिया बिल्कुल, फॉर अ मोमेंट और फॉर 2-3 minutes। Now, if the event is in your mind, stop. Take a deep, slow breath with your nose and exhale with your mouth. O stands for observe. Observe your body. Where is the tightness? Where is the difference? In my jaw, in my head, on my chest, stomach, my finger toes, anywhere. Just observe. Or observe means observe the situation as well. Observe the behavior of the child. Observe yourself, the role of you as a parent or as a guide. सही हो गया? And then proceed. B stands for proceed consciously. Just 2-3 moments are really good enough to bring back your consciousness to your actual role, to the actual situation. Got it? So use this stop technique as well. जहां पर दिल चाह रहा है ना कुछ कर जाने का, आज के दिन बच्चों को दुनिया का फर्मा बरदार तरीन बच्चा बना जाने का दिल चाह रहा है, सो रुक जाए। इट वॉज नेवर योर जॉब। जितनी माओ ने और वालिद अब्बा हजूरों ने मेरे फॉर्म के अंदर लिखा है कि बच्चे को फर्मा बरदार बनाना है, अगर आज मेरे एक और गिव अवे इस वेबिनार से लेके जा सकते हैं तो उठा के साइड पे रख दें। आपका ये काम नहीं था। आपका काम था इमोशनली सेफ कंपेनियनशिप देना अपने बच्चे को, साथ साथ रिस्पेक्टफुल वे में उसको बातें बताना और सिखाना, यहाँ तक कि जबकि वो बड़ा हो जाएगा अपने अमाल का खुद जिम्मेदार होगा, सोसाइटी में उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट हो सकेगा। इमोशनल सेफ्टी उसको रिस्पेक्ट भी सिखाएगी, उसको ओबीडियंस भी सिखाएगी, वो सबके साथ वो करेगा जो आपने उसके साथ किया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So next is inner child connection. Sometimes again, we are not reacting only to the child, we are reacting from our own unhealed experiences. And this is the core of my programs. NLP. Mothers come over just bringing their parenting issues, and we end up on solving their marital crisis. We end up on solving their childhood traumas. इतनी मुश्किल जिंदगियां वो बचपन से कैरी कर रहे थे, उनका बिलीफ सिस्टम बचपन से उनके साथ चल रहा था, अनहील्ड एक्सपीरियंसेस वो अपने पैदाइश से ले लेके चल रहे थे, उनकी शादीशुदा जिंदगी में इतने मसाइल थे, उनकी पर्सनैलिटी उनकी आइडेंटिटी ग्रो ही नहीं की थी, उन्हें पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कि वो कौन है। मैं उनसे पूछती हूँ आपकी कब मुलाकात हुई थी अपने आप से, एंड दे से पता नहीं। हम तो जिम्मेदारियों के और सोशल रोल्स के अंदर दबे हुए हैं। पता नहीं, शायद ज्यादातर कोई जवाब आ भी जाए तो मदर वुड टेल मी शादी से पहले। ठीक है। एंड यूजुअली जब एक अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी हमारा, ये द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन हैपन टू अ चाइल्ड फॉर इट्स बेटर अपब्रिंगिंग और फॉर इट्स वर्स्ट अपब्रिंगिंग इज द डायनेमिक्स ऑफ द पेरेंटल रिलेशनशिप इन बिटवीन। बाप और माँ आपस में कैसा ताल्लुक है, कैसा माहौल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल क्राइसिस का 10% होगा जिंदगी भर के ऊपर असर, बचपन के खिलौने ना मिल पाने का 5% होगा शायद, अच्छी तालीम और अच्छे ग्रेड्स ना आने का भी जिंदगी से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं ना, 5% से ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। लेकिन इस चीज का सबसे ज्यादा ताल्लुक है कि माँ बाप का आपस में क्या ताल्लुक है। एंड पढ़े लिखे समझदार वालिदैन मुझे बताते हैं कि वो बच्चों के सामने लड़ झगड़ रहे हैं, सो दिस इज वेयर प्रॉब्लम इज हैपनिंग। वो आपके साथ हुई थी,
तो आप इतने प्रेशर में जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको अपने से मुलाकात ही नहीं हुई भी। अनहील्ड एक्सपीरियंसेस की लेयर्स हैं। सो हम एनएलपी के टूल्स को यूज करके टाइमलाइन थेरेपी को यूज करके जब आपकी चाइल्डहुड से जाके आपके अनहील्ड एक्सपीरियंसेस को हील करते हैं, पुराने लेसन्स को अनलर्न करके नई लर्निंग को इंस्टॉल करते हैं, आप खुद करते हैं। मैं तो सिर्फ एज अ कोच आपको वहां तक लेके जाती हूँ। दिस इज वेयर द गेम चेंजेस। नाउ नेक्स्ट इज चाइल्ड करता क्या है जब वो ये इसी सिचुएशन में, जब मैं अपने अनहील्ड एक्सपीरियंसेस लेके कैरी कर रही थी या मैं कर रहा था। सो हुआ क्या, जब मेरा बच्चा मेरे सामने आया उसने तो मुझे एक्सपोज कर दिया। उसने अपना कुछ नहीं किया, बच्चे ने मुझे एक्सपोज किया। एक्सपोजेस इम्पेशंस, कंट्रोल इश्यूज, माय चाइल्डहुड वुंड्स, माय फियर ऑफ जजमेंट। कैसी माँ है ये, कैसा बाप है ये, कैसे माँ बाप है ये, इनको बच्चों की तबीयत क्यों नहीं आती। वो बच्चे ने मुझे एक्सपोज किया, असल में ऐसा कोई मामला नहीं है। एक्सपोजेस इमोशनल एग्जॉस्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इतने जज्बाती तौर पे थके हुए हैं कि पूरी दुनिया को एंटरटेन करें, बस बच्चा नहीं एंटरटेन हो रहा हमसे। और बच्चे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चूंकि अपेरेंटली दे लुक सो चाइल्डिश बिकॉज दैट चाइल्ड इज अ चाइल्ड, सो वी डोंट फील लाइक दैट वी शुड become another child, among these are 3 4 children, so मैं भी इनके साथ बच्चा बन जाऊं। बनना तो बच्चा ही था वैसे। सो दिस इज वेयर चाइल्ड एक्चुअली डजेंट डू समथिंग, उसका बिहेवियर कुछ नहीं करता, वो आपको एक्सपोज कर रहा है। वट यू नीड इज, यू नीड टूल्स, you need emotional healing, you need new learnings, you need to know about yourself, and above everything you need goals। आपकी जिंदगी में कोई गोल्स होने चाहिए। पेरेंटिंग मैं चाह तो यही रही थी कि आज के इस सेशन में हम कुछ गोल्स बना के जाते, बट नाउ कम्स द टाइम फॉर फादर्स। I've seen a few fathers here with us. Thank you so much for joining us, and I really appreciate when fathers come over and show their interest about parenting, because this is a thing when I deal with mothers. So ये इतना मिसिंग पॉइंट है, इतना मिसिंग पॉइंट है कि बहुत सारे बाप अपने वीडियो को ये कह रहे हैं कि बच्चों को पालना, तरबियत करना, संभालना तुम्हारा काम है, एंड दे व्हाट दे एक्सरसाइज इज फियर बेस्ड अथॉरिटी एट होम। वो जो कहा जाता है कि देखिए शेर की आंख से बाप का डंडा बड़ा जरूरी है। आई डोंट नो किसने बनाए थे ये रखवाले जरूर। सो फादर्स इमोशनल प्रेजेंस इट शुड बी देयर एट होम। आपका बच्चों के लिए इमोशनली प्रेजेंट होना उनके लिए सोने और हीरे की गारों के खजानों का मिल जाने से ज्यादा कीमती है। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग, आई किड यू नॉट। राइट दिस, एन इमोशनली प्रेजेंट फादर कैन even uh, even the treasures and the golds and jewels cannot replace an emotionally present father. What you bring to your children, you bring security, you bring confidence, emotional stability, and they are uh, it's more really possible to build a strong identity based on that you had a safe father, इमोशनली सेफ फादर। सो पता नहीं बॉयज की अपब्रिंगिंग में कह दिया जाता है अगर वो रोता है तो उसको कहते हैं आप कोई लड़की हैं जो आप रो रहे हैं, आप कोई लड़की है जो सैड हो गए हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। तो टुडे ऑनवर्ड्स जितने मर्द कम अज कम मेरे सेशन में आए हैं, प्लीज कैरी और दर्द विद यू और बताएं दर्द होता है। इमोशंस का नाम लिया करें। रोने से कोई लड़की नहीं बनता, इंसान बनता है, बिकॉज रोना इज वेरी ह्यूमन। सो अगर आप जज्बात और इमोशंस को उसका डिस्कस कर लेंगे घर में, तो इसके किसी की मर्दानगी पे कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि मर्द और औरत दोनों इंसान है और दोनों में सबसे ज्यादा यूनिक क्वालिटी जो है दैट इज देयर इमोशंस। सो टॉक अबाउट इमोशंस, अटेंड योर चिल्ड्रंस इमोशंस, रिस्पॉन्ड टू देयर इमोशंस। नाउ नेक्स्ट इज again thrive most in the presence of a healthy couple dynamic. Children thrive most. What they witness is respect. They both are respecting one another. Use good and positive words for their mother. Appreciate their mother. कुछ ना कुछ ऐसा कह दें जिससे आपको अंदाजा भी नहीं है उस दिन बच्चों के दिल में कितनी कलियां खिलती हैं जब दोनों बैठ के अच्छे मूड में बात कर रहे हो। इमोशनल सेफ्टी वो देखते हैं। काम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, फादर जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं पुरसकून तरीके से बैठ के, कोई सिचुएशन बन रही है, सो दे आर लर्निंग, उनके दिमाग में न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स बन रहे हैं। ये मैरिटल क्राइसिस में जितने मैंने मर्द हजरात को मसला क्रिएट करते देखे, उन्होंने ये मॉडल कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है। काम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डंडा देखा उन्होंने घर में बस। नजर नहीं भी आता था तो वो जो अब्बा का वर्चुअल डंडा होता था, क्योंकि उन्होंने गुस्सा करने से अपने चुप हो जाना। सो दे आर लर्निंग दैट
They learn teamwork, they learn affection. ठीक है? They witness emotional stability. They witness children learn relationships by watching relationships. आप उनको ये दे रहे हैं ना, तो आप उनको जिंदगी भर का वो सब कुछ दे रहे हैं जो दरअसल उनको चाहिए था। अच्छी तालीम, अच्छा घर, गाड़ी, ऑफ कोर्स these are important. I don't mean that these are not important, but having a positive impact in the society is everything we need, and it's the only thing we need. And if we don't have a positive impact on the society, we are negative, we are creating and spreading negativity. what uh, what the misfortune फॉर अस कि हम ये कर रहे हैं। बट ये चीज इमोशनल स्टेबिलिटी दे देंगे तो वो जहां भी जाएंगे अपने रिलेशनशिप्स में सिक्योर होंगे, रिस्पेक्ट करना जानते होंगे, वैल्यू सिस्टम को कैरी करना जानते होंगे, इम्पार्ट करना जानते होंगे। फ्यूचर में अगर आपके बेटे हैं तो वो अच्छे फादर्स बनेंगे, बिकॉज वो तो मॉडल ही आपको कर रहे हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो आपके छोटे छोटे एक्शंस को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है? और आपकी बेटियां आपकी सेफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा महफूज महसूस करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन रही है। लेकिन अगर आप एक खौफ का एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं तो ये दोनों चीजें मिस हो रही हैं। बच्चों से बहुत सी बातें नहीं करते और सुनते नहीं हैं, तो ये बहुत कुछ मिस हो रहा है। सो व्हेन व्हाट चिल्ड्रन नीड फ्रॉम फादर्स, अगेन वही सेम स्लाइड रिपीट हो गई। इमोशनल प्रेजेंस, सेफ्टी इंस्टेड ऑफ फियर, guidance instead of control, connection instead of intimidation, consistency, calm leadership, healthy boundaries, emotional availability. सो आप अभी ये बातें कुछ क्वेश्चंस है मेरे, अगर आप इनका जवाब देना चाहें, आई ओपन द नॉट एक्चुअली आई won't open the mute and unmute setting, but chat box is here. If you have any questions so far, you can ask. सबसे पहले मैं यही चाहूंगी कि अगर आप ये वाली बातें लिखें अपने आप से, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन एज वेल। What behavior triggers me the most? Write it down. Try make it a habit. What behavior triggers me the most? Then ask yourself, am I guiding or controlling? And the most important question, does my child feel emotionally safe? फिजिकली तो हमने बच्चे बड़े सेफ रखे हुए हैं, यही तो हमारी जॉब है। इमोशनली सेफ है कि नहीं? आपसे इमोशंस का कोई मैटर डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको ये बता सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता हूँ जब आप ऐसी बात करते हैं, तो ना किया करें प्लीज वगैरह, या करती हैं तो। सो इमोशनल सेफ्टी, इज इट देयर? एंड अगेन आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। एंड यहाँ पर थोड़े से रिमाइंडर्स हैं। क्लोजिंग द गोल इज नॉट परफेक्ट चिल्ड्रन। अगेन मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस अब इस तरह के आने लगे हुए हैं जब से वीडियोस बना के डालती हूँ ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स। आपके बच्चे देखने हैं मेरे बच्चे देखने हैं, जस्ट टू मेक मी मुझे साबित करने के लिए कि मैं, मेरे पास ये अथॉरिटी है बात करने की। मेरी ऑडियंस मेरे बच्चे देखना चाहते हैं। माई चिल्ड्रन आर नॉट परफेक्ट चिल्ड्रन, they are the normal, rough and tough, and kind of a children who do err every day, who do mistakes every day, and who do things जो मुझे उन्हें रिमाइंड करवानी पड़ती। इवन माई 12 year old when he enters the room, कोई विजिटर आके बैठा हो, मेरे जानने वाला बैठा हो, मुझे कहना पड़ जाता है कि आपने अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा। 12 years old, बिकॉज ही शाय, वो थोड़ा सा बात नहीं करता, बट मुझे कहना पड़ता है। बट सम ऑफ द अदर चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड आर सो गुड एट दीज सोशल स्किल्स। सो परफेक्ट चिल्ड्रन इज एंड शुड नेवर बी ए गोल ऑफ पेरेंटिंग। गोल ये है कि आपका बच्चा इमोशनली सिक्योर ह्यूमन बने। और जब आप कनेक्शन करेंगे एक बच्चे से, बिल्ड इट ट्रांसफॉर्म्स, और कंट्रोल नेवर कैन। कंट्रोल से बच्चा आपको प्रिटेंड कर देगा ओबीडियंस, वो ओबीडियंस फिर भी नहीं, ओबीडियंट फिर भी शायद ना बने। I'm stop sharing the screen. Very informative session, मदीहा, थैंक यू सो मच। और भी कोई फीडबैक शेयर चैट बॉक्स में शेयर करना चाहे तो करते हैं। एंड आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस, इफ समवन इज टाइपिंग प्लीज लेट मी नो। एंड एनी क्वेश्चन सो फार जो आज मैंने कहा उसमें कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आई थिंक आई एम ओपनिंग द माइक। My request is just only unmute yourself if you have a question, and then right there and then mute the mic again. We have 10 more minutes, and these 10 minutes I save
saved for the question answers time. How to deal with the when a child misbehaves and we instantly get a feeling of being judged. Okay, good question. Well, this is something I can say that it's only not us who have the feeling of being judged because people really judge. So what can you control? Again, locus of control की बात तो यहाँ कर लेते हैं ना. What can you control? Can you control the people's thinking and feelings and beliefs and what they, have the understanding of you, about you? Can you? This is not a new control, locus of control. You cannot. What you can do is doing your best. Doing your best with your children. आप अपना काम करें, अपने आप को आंसरेबल हैं, आप अपना ट्राई करें. सो उसके बाद आप बाकी सब लोगों को शायद जब अपना बेस्ट करें अपने लिए क्वाइट आंसरेबल आप हैं, सो आप लोगों के जजमेंट का सिर्फ अगर खौफ है तो वो खत्म हो जाएगा. जस्ट बिकॉज आप उनको चाइल्ड बिहेवियर, दिस इज गुड कि आप ये जो पिछले वाले मैसेज में आपने मिसबिहेव का कहा था, मैं तो कुछ चाहती हूँ कि कुछ वर्ड्स ही चेंज कर दिए जाएं. मैं इसीलिए नेगेटिव इमोशंस को नेगेटिव इमोशंस भी कहना नहीं चाहती, बिकॉज नेगेटिव को पता नहीं कितना नेगेटिव बना दिया गया हमारी सोसाइटी में. चाइल्ड यूजुअली डजंट मिसबिहेव, ही बिहेव्स और ही और शी बिहेव्स. ठीक है. सो अनएक्सपेक्टेड भी होता है, सब कुछ होता है, कुछ भी प्री रिटर्न नहीं है. और ये बड़ों से भी हो जाता है. बट बच्चों को जज करना इतना आसान है क्योंकि वो मजाक नहीं दे सकते. बच्चों को मारना इतना आसान है क्योंकि वो डिफेंड नहीं कर सकते, जवाब में उठा के मार नहीं सकते हैं. बड़े वाले बच्चे को इसलिए नहीं मारा जाता कि डर होता है आगे से बदतमीजी करेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी. और क्या पता कोई चीज उठा के मार ही दे तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी. तो इट्स ओनली खौफ जो हमें बचाता है, जो रोकता है कुछ गलत काम करने से. सो बच्चे के बिहेवियर के ऊपर आप खुद आंसरेबल हैं अल्लाह ताला को और अपने आप को, इसके अलावा किसी को भी नहीं. सो एनीवन कैन जज यू ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू बिहेव विद योर चाइल्ड. इट्स ओके बिकॉज दे आर नॉट योर. मैं तो यही कहती हूँ अपने आप को कि वो तो मेरे बिल्स पे नहीं करे, वो तो मेरे साथ नहीं है. और इसके अलावा मैंने बहुत अलाउ किया हुआ है कि मेरी गैर मौजूदगी में मुझे जैसा भी जज करना है कर लें. वर्चुअली अलाउ किया हुआ है अपने दिल में कि मुझे मेरे बारे में जो सोचना है सोचे, जो तबसरे करने हैं करे. कीप इट टू योर सेल्फ. ये बाउंड्री बनानी आपका काम है. कोई जज करता है तो करे, आपके सामने आपके मुंह पे खड़ा होके आपको बातें सुनाए और आपको तबसरे करे, आपके पेरेंटिंग पे कमेंट्स पास करे. ये आपकी जॉब है कि अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुल वे में. The way I make boundaries is like smiling and using only one sentence and not welcoming again आपका तबसरा. किसी भी अच्छे अंदाज में जवाब दें कि मुझे नहीं करना. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है some NLP techniques to control ourselves when we are angry with kids and want to shout. See, अभी तो मैंने आपको stop टेक्निक बता दी है, deep breathing and pause. Otherwise, there are a lot, many techniques that couldn't be covered in 1 hour webinar. Inshallah, in the upcoming webinars, आज जैसे मैंने मॉडल भी पढ़ाया इससे पहले के webinars में, this wasn't my style. My style was just a lectures type, topics जिनको मैं cover करी थी. In here today, I just covered these things using different models. A response model and a reaction model. So creating awareness was an NLP technique. Trigger, emotion, reaction. Trigger, emotion, pause, awareness, react, response. ठीक है. So this is how I could inculcate these techniques into my webinar. But yeah, inshallah, if you stay in touch, तो inshallah ताला मैं ये चीजें सिखाती हूँ. Or otherwise, in real sense, of course, when a person comes to me for my one-on-one sessions, so again, it's not a one session game, never ever. जो कुछ लोगों को पता होगा अभी इस सेशन में ही, a few people who have just left, they were my individual clients. It takes time. न्यूरोलॉजी ओवर द इयर्स बिल्ड हुई है, अनकॉन्शियस पैटर्न बने हैं, अनकॉन्शियस माइंड ने पैटर्न बनाए हैं. सो अभी वो आप एक सेशन में अनडू करके नए कैसे बना सकते हैं. इट टेक्स टाइम, at least 6 to 8 weeks at least. So this is how we unlearn the old patterns, we install the new ones, and then we practice. ओके जी, मोर क्वेश्चंस इफ यू हैव. अभी तो मैंने अनम्यूट की सेटिंग भी ओपन की हुई है, इफ एनीवन वांट्स टू अनम्यूट.
सैयदा, क्वेश्चन इज बिट एम्बिगुअस कि वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता। आई डोंट नो वो कौन कौन सी चीजें हैं। अगर वो खेलना नहीं चाहता, अगर वो पढ़ना नहीं चाहता, अगर वो किसी भी चीज को एंजॉय नहीं करना चाहता, माइट भी उसकी रीजन होगी कि या तो आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर दें कि क्या वो मोबाइल में भी इंटरेस्ट नहीं लेता। यहाँ पर तो मैं सब माँ को सीधा करूंगा। समटाइम्स ये मुझे अगर आप बताएंगी तो मैं आगे तबसरा कर पाऊंगी। सैयदा, सैयदा फायजा, दैट क्या वो मोबाइल में भी इंटरेस्ट नहीं लेता। और दूसरी बात है कि द बॉय इज टू यंग टू बी जज्ड, पढ़ता नहीं है। हार्ट ब्रेक, मेरा हार्ट ब्रेक। सैयदा फायजा, पढ़ता नहीं है वो। 3.5 ये सही लिखे है ना, ये मुझे गलती हो रही है पढ़ने में। 3.5 8.5 है। भाई को मारता है। Discipline a child, a warning system, sit in a corner, etc. Well, Mariam, I don't really agree sitting in a corner and time out techniques. Sayyada, your child is too young that your expectations are way more than his capacity. पढ़ने से मुराद किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट, आई डोंट गेट इट। इफ द चाइल्ड हैज सो मच ऑफ द स्क्रीन टाइम, सो दैट कैन बी अ रीजन कि वो किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लेता। 3.5 ईयर्स के बच्चे को अगर आप पढ़ा रही हैं तो एज एन एनएलपी कोच वी डोंट डू दीज थिंग्स, बट आई विल डू इट। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट। उसको पढ़ाएं मत, प्लीज नहीं पढ़ाएं, कुछ भी नहीं पढ़ाएं। अगर आप 2 साल भी मजीद कुछ नहीं पढ़ाएंगी, वो जिंदगी में फिर भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंशाल्लाह बनेगा और अपने टाइम के मुताबिक हर स्किल को सीखेगा और बहुत समझदार और अच्छा और प्यारा सा बच्चा बनेगा। अभी उसको नहीं पढ़ाएं प्लीज, 2 साल मत पढ़ाएं। और रही बात चीजें फेंकता है, एब्सोल्युटली एक्सेप्ट एक्सपेक्टेड एंड नॉर्मल बिहेवियर फ्रॉम अ 3.5 ईयर्स ओल्ड। अगर छोटे भाई को मारता है, एब्सोल्युटली एक्सपेक्टेड एंड नॉर्मल बिहेवियर फ्रॉम अ 3.5 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। एंड यस मरियम, best way to discipline a child, making consistent boundaries only, and they should be respectful. You can't really, warning doesn't work, never works. It has never worked. Sit in a corner. If a child is too young, 3 4 years, बहुत प्यार से नरमी से खुद भी कहीं फासले पे बैठ जाएं, इतना तो मैं कह सकती हूँ, बट इट रियली डजंट वर्क। इट क्रिएट्स स्ट्रेस ओवरडोज, एंड स्ट्रेस ओवरडोज फॉर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इज नॉट वेरी गुड। मेक बाउंड्रीज एंड बी कंसिस्टेंट ऑन देम। जो बना दी बाउंड्री अब बन गई है, और प्यार मोहब्बत से हर दफा उसको बताएंगे कि दिस इज द बाउंड्री एंड वी कांट डू थिंग्स अदर देन द रूल्स। अगर कोई रूल्स के साथ चीटिंग करनी है तो वंस अ वीक। फॉर एग्जाम्पल, if my children wanted mobile phones, if it's the time, so that's the time, done। मोबाइल ले लिया, बस यूं गए और हाथों से उठा लिया, दूसरे फोन पे टाइमर लगा हुआ है या मोबाइल पे क्लॉक के ऊपर टाइम देखा जा रहा है कि जैसे टाइम हो जाएगा मैं ले लूंगी। ऑफ कोर्स दे डोंट वांट टू गिव मी फोन, or they're not happy at least, and I know they're not happy. I'm emotionally connected. I will say कि of course you're not happy, आपको अच्छा तो नहीं लग रहा, but it's his rule and I will have to do so. Now let's go create inclusivity, let's go and do something else, let's have dinner, लेट्स गो टू स्लीप। इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो द चाइल्ड, एंड डिसिप्लिन के लिए भी कुछ भी चीज अनएक्सपेक्टेडली वक्त से पहले एक्सपेक्ट करना, जल्दी जल्दी से डिमांड करना डजंट वर्क। इट टेक्स टाइम। उन्हें कम से कम इतना रिस्पॉन्सिबल तो होने दें जितना उनको हमारे दीन ने जिस एज में बनाया है। बालिग, बलूगत, puberty, when it hits, so you are baligh, now you're responsible, you're accountable। उससे पहले नहीं है वो। जो गलतियां होती जा रही हैं उनको साथ मिलाएं, गले से लगाएं, दोबारा सेट कर लें। और more questions, or if any feedback that you want to give right now in the chat box, you can give the feedback about today's session, how was it, or you can send in feedback in my inbox, or I'll open the group today। जो मदर्स हीलिंग हब वाले पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो अपना फीडबैक वहां भी दे सकते हैं। और एनी सजेशंस रिगार्डिंग अपकमिंग फ्री वेबिनार, कोई भी जो चीज़ आप चाहते हो, जो चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत लग रही हो, दिस आई यूजली ट्राई टू make arrangements for once a month free webinar। Just my routine is so tough that sometimes I cannot। And I'm reminding you guys that you can unmute yourself।
What if a big kid, like above 10, hits younger sibling and fights too much? Well, uh, it's a big study to do because I did a lot. This is the story of my place even today. They हिटिंग ऑफ कोर्स, अगेन वही वालदेन मेरे पास आते हैं, शायद हम बहुत मारते हैं तो भी ये भी एक दूसरे को मारते हैं, समटाइम्स ये भी ठीक है, लेकिन समटाइम्स ये इफ दे आर बॉयज तो भी, गर्ल्स तो भी वही न्यूरोलॉजिकल डिमांड है, समझ नहीं आ रही, दिमाग शट डाउन करके और अब दिल चाह रहा है कि मार के ही अपना किस्सा चुकाया जाए। इट्स एक्चुअली नॉट, थैंक यू सो मच अयाज, इट्स एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड कि आप बच्चा, नॉट अलाउड, शुडंट बी अलाउड टू हिट योर सिबलिंग। सो डू वट एवर यू कैन, बट आपको भी उसके लिए मारना नहीं है। आप उसके लिए बाउंड्रीज बनाएं, क्लियर मीटिंग्स होल्ड करें। बच्चा 10+ है तो मैं कहूंगी रूल्स बनाने से काम नहीं चलता, मीटिंग करने से चलता है। Have your children sit with them, ask, take suggestions that, see, look, this is wrong. आप मार नहीं सकते हैं, ये एथिकली भी गलत है, ये लीगली भी गलत है, ये बिल्कुल ये गुनाह भी है, ये एक गलत काम है। आप किसी को क्यों मारेंगे? जस्ट हिटिंग एंड गिविंग देम पेन, ठीक है, आप उसे तकलीफ दे रहे हैं तो आपको तो अच्छी अच्छी बात नहीं है। एंड देन आई कैन नॉट अलाउ यू, कुछ छोटा बच्चा मारता है तो उसे साफ उसके हाथ पकड़ सकते हैं कि मैं आपको मारने को अलाउ नहीं कर सकती, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस। एंड देन अगर वो छोटा बहन या भाई अनसेफ है और बड़ा सिर्फ अपने एंगेज इमोशनल ओवरवेलम के थ्रू गुस्से में आ गया, वो मारने जा रहे हैं, तो छोटे की सेफ्टी आपके ऊपर फर्ज है। जो भी वल्नरेबल वाला बच्चा है उसको पकड़ के बचाना। और मैं अभी तक अपने जो बड़े वाला बेटा है उसको, आई होल्ड ऑन हिम क्वाइट, जितनी भी मैं पावर कर सकती हूँ एक्सरसाइज, वो मुझसे ज्यादा ही पावरफुल है। लेकिन उसके हाथों को पकड़ लेना और उसको दीवार के साथ लगा के खड़े कर देना, पकड़े के रखना, कि मारना नहीं है, कुछ भी और करना है। फिर भी उनकी फ्रेंडली फाइट्स होती हैं और मार धाड़ में चली जाती हैं। एंड आई नो दैट दे आर बॉयज, तो ये थोड़ा बड़े होके समझ जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर आप, मैं जब भी स्पेशल मीटिंग्स हमारी कॉल की जाती हैं तो वो इस तरह के इश्यूज पे होती हैं। सालिया, 5 इयर्स के लिए आपको मीटिंग्स करने की बहुत जरूरत नहीं है, आई टू आई करेक्शन के साथ बातें और रूल्स एंड कंसिस्टेंट बाउंड्रीज, वो आपने बना ली बाउंड्री, आप उसको बता दें और फिर उस पर कंसिस्टेंट भी रहें। उसको बस ये पता होना चाहिए कि ये रूल है। 5 इयर्स के साथ आपको मीटिंग करने की, प्रॉपर मीटिंग, वो वैसे ही होता है बच्चों वाला काम भी, कि चलो आओ हम इस पे मीटिंग करते हैं, हमने ये रूल लिख लिया और अब आप यहाँ पे अपना नेम लिखो या इस तरह से कोई चीज बनाओ, अपना फेस बना दो छोटा सा, ऐसे सर्कल बना दिया, ठीक है, इस तरह का कोई काम कर लिया मामा। तो ठीक है। सो दिस इज हाउ आप ये वाले काम कर सकते। I try my best to behave, respond like the mother I needed at their age. I guess it has helped a lot. Oh yeah, very good point. जब भी आप किसी प्रॉब्लम में चले जाते हैं तो आपको ये चीज हेल्प करती है कि आपको उस वक्त, अगर आप इस सिचुएशन में होती या थी जब भी, तो आपको कैसी माँ चाहिए थी, उसको क्या करना चाहिए था। एंड दिस हैज हेल्प मी एज वेल अ लॉट। बहुत सी सिचुएशंस में मैं अपने आप को सिर्फ यही बताती हूँ मामा कि मामा मुझे किस मामा किस्म की मदद की जरूरत थी। मामा। मोबाइल एंड मीटिंग इस सामान बच्चे के हाथ में, सो दे आर, हमारे राज लीक हो रहे हैं, बच्चों के हाथ में हमारे सीक्रेट्स जा रहे हैं अफीफा। यस, एनी मोर क्वेश्चंस और शुड बी जस्ट सम इट अप, और एनी फीडबैक जो इस चैट बॉक्स में आएंगे। इफ किड आंसर्स बैक टू मदर विद लाउड एंड रूड वॉइस, रिस्पेक्ट इज अ वैल्यू, काइंडनेस इज अ वैल्यू। घर में क्लियर होना चाहिए आपके घर में बच्चों को, आपको जो चीजें, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट इज नॉट अलाउड, आप भी उनकी नहीं करेंगी। और आप उन्हें ये मॉडल करके बताएंगी कि मुझे गुस्सा भी होता है तो मैं आपसे रूड वे में बात नहीं करती हूँ, अगर मैं करती हूँ तो मैं अपोलोजाइज करती हूँ। वेल इन दैट केस जो क्वेश्चंस अब आने लग गए हैं वो एक लंबी ट्रेल है। एंड वी आर डूइंग वंडरफुल जॉब इन आवर पेरेंटिंग कोर्स जो मेरा अभी चल रहा है, उसकी 2-3 क्लासेस रहती हैं। हम ऐसी सिचुएशंस के लिए बहुत से प्रैक्टिकल टूल्स पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हीलिंग, मदर्स की हीलिंग हो रही है। हीलिंग के बगैर आई डोंट बिलीव इन पेरेंटिंग, ठीक है। अ मदर, अंटिल द मदर इज हील्ड, पेरेंटिंग जॉब कैन नॉट बी डन। आपसे कहा इमोशनल और न्यूरोलॉजिकल है, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स में इतने जख्म छुपा के अनरिजॉल्व इमोशंस लेके आप पेरेंटिंग नहीं कर सकते। सो आपको नहीं पता चलेगा अगर बच्चा बदतमीजी कर रहा है और आप ट्रिगर हो गए और आपको नहीं समझ आएगी कि आप बच्चा है या वो बच्चा है। ये आपका कसूर नहीं है, अनकॉन्शियस माइंड का यही तरीका कार वारदात है।
वो अचानक आपकी मेमोरी को, टाइमिंग को मिक्स कर देगा और आपको लगेगा आप भी बच्चा है और ये भी बच्चा है, या शायद ये बड़ा है और मैं बच्चा हूँ और मैं इनसिक्योर हो गई हूँ, कोई मुझे खौफ आ गया है, कोई मुझसे कुछ गलत हो गया। सो दैट इज वाई यू डोंट नो व्हाट टू डू। सो इन दैट केस अगर अपने आप को सिर्फ इतना याद दिला दे, आई एम अ मदर एंड दिस इज चाइल्ड, और ये इससे गलती हो गई, और उसको किसी अच्छे मोमेंट पे इमोशन को, अवेयरनेस क्रिएट होने तक रोक के रखें, एक्शन नहीं बनाए, बिहेवियर नहीं बनाए। वो रुका रहेगा तो थोड़ी देर के बाद आप जाकर उसको आराम से बिठाएंगे और बच्चे को बात करेंगे कि सी आपने ऐसी बात की थी, सो वी डोंट टॉक टू अदर्स इन दिस टोन। ये जरा बड़ों और छोटों वाला जो ब्लैकमेलिंग स्टाइल है इसको भी चेंज करने, कि मामा ऐसे बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच्चा बोले तो बदतमीजी होती है। नहीं 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 नहीं, जो बदतमीजी है या जो रूड है ना, वो रूड ही है। बड़ा रूड है तो भी रूड है, छोटा रूड है तो भी रूड है। आपको भी इजाजत नहीं, तो आप करेंगे तो फिर बच्चा भी नहीं करेगा। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हाँ मैं रूड हो गई थी, आई एम सो सॉरी, तो ये आपका बच्चा यहाँ से भी बहुत अच्छी वैल्यू कैरी करेगा। सो आई थिंक वी आर डन। थैंक यू सो मच। सजेशंस का मैं वेट करूंगी, आप मेरे इनबॉक्स में भी कर सकते हैं सजेशंस, कि आप अगला वेबिनार किस तरह के टॉपिक्स पे चाहते हैं। बाकी अदरवाइज यू, माय इनबॉक्स इज देयर फॉर केटरिंग क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा सिचुएशंस क्वेश्चंस पे नहीं कर सकती। पर्सनल नंबर, आई थिंक दैट पर्सनल तो नहीं, वो मेरा प्रोफेशनल नंबर ही है। इट्स देयर इन द ग्रुप, मैं फिर भी बता देती हूँ यहाँ पर। दिस इज माय बिजनेस व्हाट्सएप। जी जी Amatullah, why not? I have given the number here in the contact and I'll be waiting for your feedback in the group. आपको कैसा लगा, और अपना जैसा भी, अगर अगर आज के सेशन ने कोई भी वैल्यू ऐड की है आपकी लाइफ में, if it added any value in your life, so I'd be requesting to give me that testimonial in form of message in the group Mothers Healing Hub. And if any one of you is not there in the group and is a mother, वो मेरा ग्रुप है जिसके अंदर मैं रिमाइंडर्स भेजती रहती हूँ, फिर प्रोग्राम्स आते रहते हैं। लेट मी नो, आई शेयर्ड माय नंबर हियर, सो आई ऐड यू इन दैट ग्रुप। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग ग्रुप नहीं है, एडमिन ओनली का ग्रुप है। कभी कभी मैं इसको ओपन करती हूँ फॉर क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, एंड रिमाइंडर्स उसमें शेयर होते रहते हैं। थैंक यू सो मच, एंड नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। Overpowers and dominates his younger siblings, even her elder sister. He just wants to control them, and if they don't listen to them, he hates them so much. Should I correct him? Correct. Uh, correct से पहले I need you to connect. उसके साथ connect कर लें आप। Just because अगर आप connect नहीं कर रहे, वो क्यों कर रहा है ये सब कुछ, आपने अच्छा थोड़ा सा इशारा बता दिया कि overpower and dominates. सो तो क्यों ऐसा करे, ज्यादातर ऐसे बच्चे आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ही ये सब करते हैं, बिकॉज दे फील द फियर ऑफ द पावर बीइंग स्नैच्ड अवे, द फियर ऑफ बीइंग अंडर डोमिनेटेड, मतलब थोड़ा सा वो किसी के अंदर दब जाने का डर होता है, तो फिर वो दूसरे बिहेवियर से अपने आप को डोमिनेट करते हैं, जो नॉट अलाउड किस्म के बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं भी आपको एक हार्ट शेयर करूंगी और उसके बाद फिर हम एंडिंग द मीटिंग इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी जरूर अपना ख्याल रखिएगा, एंड आई एम देयर to, and in any form of situations, if you want to contact me for a one-on-one session or any questions or any suggestions, I've given you my number. Thank you so much. Okay. Allah Hafiz.